our topic is that is DHTML. Okay, that is Dynamic Hypertext Markup Language. DHTML stands for Dynamic Hypertext Markup Language. Now, what is actually DHTML is? Okay, we have studied till now. We have studied HTML, CSS, XML validations, and XML. What is actually XML is? Then after that, JavaScript means if we conclusion अगर हम निकालें तो if you gone through the previous videos तो the basics of a web designing we have already studied. Okay, so now we'll see this DHTML concept in deep. Okay, so that is DHTML is a term used to describe the technologies used to make web pages dynamic and interactive. So what does it means? This means that whatever the technologies, that is आपका HTML हुआ, CSS हुआ, JavaScript हुआ, XML हुआ, तो इनका पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ओके, दैट इज उनका जो पूरा कॉम्बिनेशन है, दैट इज टू मोस्ट मतलब ओके, दैट इज DHTML. ओके, सो एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड consortium, okay, dynamic HTML is a term used by some vendors to describe the combination of HTML style sheets and scripts that allows document to be animated. Okay, now again from if we talk about exam point of view से अगर हम बात करें, so that is HTML and DHTML का difference is also one of the very important question. अगर मैं पूरे वेब टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपके डिफरेंसेस हुआ जावास्क्रिप्ट का हुआ एंड XML HTML का हुआ या DHTML HTML का हुआ, so they are important one. Okay, सो HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है. वेल DHTML क्या है? कलेक्शन है उन सभी टेक्नोलॉजीज़ का जो हमारे यूज्ड होती हैं वाइल वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट. DHTML क्रिएट्स डायनामिक वेब पेजेस वेयर एज HTML क्रिएट्स स्टैटिक. यस, अगर हम HTML की बात करें तो HTML सिर्फ और सिर्फ यू कैन से एक आपका सिर्फ तैयार करके देती है एक पेज, उसमें कुछ भी स्टैटिक यू कैन से उस बिल्कुल उसमें कोई लाइव कुछ नहीं होता है. ठीक है, सो उसको उस डायनामिक बनाने के लिए, उसको लाइव बनाने के लिए हमें अदर फर्दर टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ती हैं, है ना. स्टोरिंग डाटा के लिए हमें XML यूज़ करना पड़ता है, देन हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ती हैं, एंड आफ्टर दैट वो पूरा क्या होती है? डायनामिक होती है. ओके, सो DHTML क्रिएट्स डायनामिक वेब पेजेस वेयर एज HTML इज जस्ट अ स्टैटिक वेब पेजेस. DHTML allows including small animations and dynamic means in web pages. Okay, DHTML use events, methods, and your properties to insulate dynamism in HTML pages. Okay, so hope these points are clear to you. HTML sites will be slow upon client side technology, while DHTML sites will be fast enough upon client side technologies. HTML creates a plain page without any styles and scripts called HTML, whereas DHTML creates a page with all these things technologies. Okay, in HTML can't have any server side code, but DHTML contain, because JavaScript हम अगर हम बात करें तो बोथ क्लाइंट एज वेल एज सर्वर साइड दोनों तरह से हम देख सकते हैं. ओके, नाउ HTML फाइल आर स्टोर्ड विद .html और .html एक्सटेंशन, while DHTML files are stored with .thtm extension. HTML doesn't require any processing from browser, while DHTML require processing from browser, which changes its looks and feel. Okay, so अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं DOM क्या होता है. दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज DOM इज अ प्रोग्रामिंग API है फॉर HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स के लिए. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन्स दैट यू कैन से कि ये क्या है? ये एक इट डिफाइंस द logical structure of documents and the way a document is accessed and manipulated. It you can say DOM कि आप कुछ भी मतलब आप इट्स लाइक कि आप कुछ भी वर्क करते हो. ठीक है, कोई भी आप वेबसाइट बनाना सोचो, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, तो फर्स्टली आप उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है, यू विल फर्स्ट सी दोज थिंग्स. ओके, कि वॉट एवर द रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, सो DOM आपका उसी तरह से है, डिफाइन द लॉजिकल structure of documents and the way a document is accessed and manipulated. As a WW3 consortium specification, one important objective for the document object model is to provide a standard programming interface that can be used in a wide variety of environments and applications. Okay, and it can be, and
एंड इट कैन बी यूज्ड विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो अब हम देखते हैं वन बाय वन HTML का डोम एंड अदर का हम देखेंगे. तो HTML डोम की अगर हम बात करें तो HTML डोम इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML. ठीक है, तो ये क्या कंटेन करता है? द HTML एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स, द मैथड टू एक्सेस ऑल HTML एलिमेंट्स एंड द इवेंट्स. मतलब ये सब चीज़ें क्या क्या उसमें हम एलिमेंट एज ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने वाले, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो वो सब कुछ जितना भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है फॉर HTML का, जिसमें ये सारे चीज़ें वो क्या करेगा? डिफाइन करेगा, प्रॉपर्टीज़, मैथड्स एंड इवेंट्स. ओके, सो अगर हम इसका डायग्राम देखें, सो डायग्राम विल बी लाइक दिस डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ रूट एलिमेंट HTML. अब इसमें जो जो चीज़ें होंगी हमारी, ठीक है, जैसे एलिमेंट मेरा हेड हुआ, इसमें मेरा टाइटल है, देन नेक्स्ट माय टाइटल, एट्रीब्यूट यानी जो भी मैं टैग यूज़ कर रही हूँ वो सब चीज़ें. ठीक है, ये टैग हो गया, H1 हेडिंग हो गया, इसके अंदर माय लिंक लाइक दिस. तो ये पूरा क्या है? एक डॉम है फॉर HTML की, जिसमें उसके सारे ऑब्जेक्ट जो भी वो यूज़ करने, इवेंट्स, मैथड, सब चीज़ें जिसमें वो डिस्क्राइब होता है. ठीक है, सो दैट इज़ HTML के लिए. अगर हम XML की बात करें तो XML DOM इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर XML. सेम वही चीज़, XML डॉक्यूमेंट्स कैन हैव अ हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशनल यूनिट्स कॉल्ड नोड्स. तो DOM इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऑफ डिस्क्राइबिंग दोज नोड्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. ओके, सो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो क्या रहेगा? XML डॉक्यूमेंट, देन दिस इज द, यू कैन से द पार्सर. ओके, पार्स डॉक्यूमेंट, देन यहाँ पर रूट, देन चाइल्ड, बिकॉज ये क्या है आपका, एंड फाइनली दिस इज द application. So this is the structure for your XML DOM. Okay, now you can understand how to example to understand how to use JavaScript in DHTML. तो कि ये although हम JavaScript कर चुके हैं, but how will use the JavaScript in DHTML, तो will see head, ये हमारा नॉर्मल HTML कोड है जैसे हम यूज़ करते हैं. हेड मैंने दिया, हेड है, देन टाइटल में मैंने दिया DOM प्रोग्रामिंग, टाइटल बंद कर दिया, हेड भी बंद कर दिया मैंने. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, मैंने बॉडी में मैंने क्या रखा कि H1 ग्रीस लाइक दिस. देन आपका एक और मैंने इसमें पैराग्राफ लिया, दैट हेलो ग्रीस. देन मैंने स्क्रिप्टिंग स्टाइल इसमें लगा दिया, जो कि मैंने आपको बताया ही, टेक्स्ट, तो ये इसका स्टाइल है. ठीक है, ये इसका टाइप है. देन डॉक्यूमेंट इज दैट इज डॉट गेट एलिमेंट्री ID गेट्स इनर HTML इज इक्वल्स टू, तो मीन्स दिस वन, एंड स्क्रिप्ट को इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल फॉर हाउ वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट इन HTML. सो एक और इसमें दे रखा है क्रिएटिंग एन अलर्ट ऑन क्लिक ऑफ अ बटन. ओके, सो ये हम जब मैं जावास्क्रिप्ट करती हमने तभी भी किया था. ओके, बट एक बार और देख लेते हैं ये कि एक आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एन अलर्ट ऑन क्लिक ऑफ अ बटन. यानी जब हम बॉडी और हेडेड वाला पार्ट करते हैं उसमें हमने किया था. तो फॉर एग्जांपल बॉडी पार्ट में लिखा हेडिंग 1 दैट इज ग्रीक्स फॉर ग्रोस के इनपुट टाइप क्या हमने सबमिट किया. तो ऑन क्लिक दैट इज क्या होगा? स्क्रिप्ट स्टाइल टेक्स्ट लिया, फंक्शन क्लिक, तो व्हाट विल हैपन, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? दैट विल बी ग्रीक्स फॉर गीक्स. ओके, जो भी आपका हेडिंग है लाइक दिस. ठीक है, एंड एक आपका पॉपअप बटन विल जनरेट होगा. ठीक है, मतलब पॉपअप बटन जनरेट होगा. ठीक है, तो दैट विल बी द आउटपुट रहेगा आपका, मतलब जो क्या बोलेगा कि कलर चेंज टू ग्रीन. ठीक है, मतलब ये आपका आउटपुट आपका, जैसे आपने हेडिंग यहाँ पर ऑलरेडी हेडिंग क्या थी? ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स थी. फाइन, दिस इज ओके. देन इनपुट टाइप क्या लिया? सबमिट, जिस पे हमने क्या लगाया? ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू क्लिक, एंड देन स्क्रिप्ट स्टाइल लगाया मैंने, टेक्स्ट टाइप लिखा हुआ, टाइप जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्लिक जो ये है, जैसे ये फंक्शन क्लिक ये वाला पार्ट चलेगा तो ये फंक्शन क्लिक फंक्शन अपना वो होगा. एंड जैसे मतलब इनपुट जैसे आप इसको आगे परफॉर्म करोगे, क्लिक करोगे, तो व्हाट विल वो एक विंडो, एक आपकी नेक्स्ट विंडो यहाँ पे उसी के अंदर खुल के आएगी, जो क्या बोलेगी? दैट इज कलर जो यहाँ पे चेंज टू ग्रीन. तो ये हमने जो जावास्क्रिप्ट के हमने हेड बॉडी वाले जो एग्जाम हमने वो देखे थे, प्लेसमेंट्स देखे थे, उनमें हमने ये पढ़ा था. ठीक है, सो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ ऑल्सो. ठीक है,
सो दिस इज़ अबाउट योर HTML, क्या है, हम क्या 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 यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल. सो अपकमिंग हम जो वीडियोज़ हैं उनमें हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे. मीन्स ये हो गया आपका एक तरह से जो यूनिट 2 था पूरा वेब टेक का, दैट इज़ दिस इज़ लाइक कि मतलब आपका एक पूरा कैसे आप कर सकते हो, हाउ द थिंग्स विल वर्क वाइल फेज वन बाय वन. ऑल दो अगर हम इन सब टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो दे आर अ वास्ट, यू कैन से देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन दीज टेक्नोलॉजीज. ठीक है. सो जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट की वीडियो मैंने मिस